جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا طویل خطاب. یہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اس محفل کے جو وقت اس کا طے تھا اس کے مطابق مختصر خطاب تھا یہ, ورنہ 3-4 گھنٹے خطاب یہاں پہ لائیو ہوتا رہا ہے. تو ابھی مختصر کچھ کویشچن آنسر, 1-2 کویشچن آنسرز ہم لیں گے. ہمارے ساتھ مائک پہ موجود ہیں ہماری کلیت الشریعہ کے ساتھی مولانا افضل خان صاحب سے میں گزارش کروں گا ایک کویشچن وہ بھی کریں گے, تو وہ بھی پلیز مائک پہ آ جائیں. اور ایک کویشچن جو ساتھی مائک پہ ابھی موجود ہیں, پلیز اپنا نام, تعارف اور کویشچن کیجیے گا. السلام علیکم, میرا نام محمد نصر اللہ ہے اور میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور کرنٹلی جامعۃ الرشید کے کلیت الشریعہ ڈپارٹمنٹ کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن ہیومن ایولیوشن سے متعلق ہے کہ اگر ہم دعویٰ سرکلز میں دیکھیں تو اس میں 3-4 قسم کی اپروچز ہمیں نظر آتی ہیں اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے. ایک تو ماڈرنسٹ متجددین کی جو اپروچ ہے, جو آیات اور قرآن مجید کو کھینچ تان کر ان کے اندر ہم آہنگی ظاہر کرتے ہیں. دوسری سائنٹیفک ریفیوٹیشن والی اپروچ ہے, اور تیسری فلسافیکل اپروچ ہے, یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم والی. تو آپ سے آپ کو اوپینین جانا تھا کہ ان میں سے افیکٹو آپ کس کو جانتے ہیں, کیونکہ سائنٹیفک اپروچ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں مائنورٹی اوپینین لیا جاتا ہے سائنٹسٹ کا, جبکہ کنسنسس ان کا ایولیوشن کے ہونے پر ہے. اگر اسلام پہ مائنورٹی اوپینین کو لے کے اعتراض کیا جائے تو ہم نہیں لیتے. بھائی کا بہت اہم سوال ہے کہ جو ایولیوشن کے بارے میں جس ڈارون تھیوری ہے کہ ہم انسان بندر سے آئے اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے, تو بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ 3 طریقے ہوتے اس کو اپروچ کریں. ایک لوگ جو ایولیوشن کو پورا صحیح مانتے اور گھما پھرا کے بولتے بھائی ٹھیک ہے قرآن سے ٹکراتا نہیں, اور دوسرا طریقہ ہے فلاسفیکل بات کرنا, اور تیسرا سائنٹیفک ایویڈنس کو جو سائنٹسٹ کہتے اس کو دوسرا ایویڈنس دینا اور پروف کرنا کہ یہ سائنٹسٹ غلط ہے اور قرآن صحیح ہے. 3 اپروچ ہے. میں مانتا ہوں آخری اپروچ میں کہ میرے نزدیک کیونکہ ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام ایپ از ناٹ اے سائنٹیفک فیکٹ اکارڈنگ ٹو می. یہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے, یہ ہائپوتھیسس ہے میرے نزدیک. میں جانتا ہوں کہ ابھی پہلے تو بہت کم سائنٹسٹ, کچھ دور تھا کہ زیادہ سائنٹسٹ مانتے تھے ڈارون میں, بعد میں کم ہو گئے, پھر بڑے اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی پہلے ایسا تھا کہ اکثر اگر آپ پوچھیں گے 1 to 1 تو اکثر اگری نہیں کرتے تھے. میں چند سال پہلے کی بات کروں, لیکن ابھی آپ کریں گے, لاسٹ جو میں نے سروے کیا تھا تو جو لوگ مانتے ہیں کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے, اور وہ شروع میں کرتے نہیں ٹکراتی, اینڈ میں بولتے ہمیں صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم بندر سے نہیں بنے نا, وہی تو بات پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. تو پورا گھماتے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ڈارون تھیوری صحیح ہے, اور آخری میں بولتے ہوئے سب چیز صحیح لیکن ہم بندر سے نہیں بنے. میں بولا بھائی صاحب پہلے بولو نا یہ, اور بہت سے لوگ میرے دوست ہیں, بھائی ہے, میں ان سے بولتا ہوں, میں آپ پہلے بولو میں کوئی اعتراض ہے, شروع میں تقدیر کے بولو آپ بندر سے نہیں بنے, پھر آپ ڈارون تھیوری کو سپورٹ کرو. ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے کہ ایوری لیونگ کریچر از میڈ فرام واٹر, قرآن میں کہتا ہے. قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا وجعلنا من الماء كل شيء افلا وجعلنا من الماء, ہم نے سب چیز پانی سے بنائی. تو ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے, لیکن بنیادی چیز تو صحیح نہیں بھائی. بنیادی چیز تو مندر سے نہیں بنے بھائی. تو اس کے اوپر جو آرگیومنٹ ہے اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بن کے کافی, میرے پہلے آنسر جو آپ دیکھیں گے 96 کا اولڈ آنسر تھا, میرے دعویٰ ٹریننگ کا ریفائنڈ آنسر ہے, لیکن اینڈ سے میں نہیں مانتا ہوں کہ ہم مندر سے بنے, کیونکہ وہ بنیادی قرآن کے خلاف ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے نہیں, وہ پہلے وہ جن نے بولے کہ پہلے لوگ تھے تو پہلے بھی تھے بندر, یہ سب فلاسفیکل نہیں. قرآن ہے, حدیث ہے. ابھی تک کہ یہ کہنا کہ ہم یہ ڈارون تھیوری 100% صحیح ہے, غلط ہے. آپ ذرا ریسرچ کرو, خالی جاؤ USA میں کتنے لوگ ڈارون کو مانتے, 25% سے زیادہ نہیں مانتے. 25% ماشاء اللہ, 10% بھی مانے تو
तुम्हें कुरान को 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को। तो 25% बहुत है। नहीं डॉक्टर यू आउटडेटेड। अरे भाई मैं डॉक्टर हूं, तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है। तो आप आके बोलते मैं इंजीनियर हूं, मैं ये बताता हूं, और बड़ा बड़ा डायलॉग मारते। मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि हम अंदर से नहीं बने। मुसलमान को छोड़ो, चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी जाए आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला। आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे। पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है। मैं बोला गलत है, मैं नहीं मानता हूं। और वो बोलेंगे भी मैं वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नाइक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता नहीं, कोई खराब है। तो मेरे नजदीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए। हम मंदिर से नहीं बने, अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे। डार्विन बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंस है। तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 की, कि कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट। वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे, वो बाइबल से टकराएंगे। बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना, वो प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिलियन, तो बाइबल से टकराती है बिल्कुल से। डार्विन से आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले, कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है। और कुरान और हदीस में लिखा है कि बल्लिगो निवल आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, टकराते नहीं तो इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती, गलत भी हो सकती, ये उसूल है शरिया का। तो जहां तक कि डार्विन थ्योरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक। और मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में किया था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमें कुरान के आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीजें हमें पता चलती बाद में। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैंने इससे पहले बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, और अभी मैं जामिया रशीद कुलियत शरिया साल सोम का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी में जिस तरह हम देखते हैं कि जब क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचना शुरू किया, जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है। और हमारे जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान की है, हम लोग अभी तक उसी चीज़ से फंसे हैं। और सेकेंडली जबकि हमारी इस्लाम में बहुत सारी थॉट्स ऐसी होती हैं जो प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, तो पहले से प्री डिटर्मिन्ड थॉट्स को लेके मैं एक तख्लीकी जहन कैसे रख सकता हूँ। और चूँकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई, जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इक़दाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ, उसके बारे में पहले से आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम देखते हैं कि कितनी तरक्की करते, लेकिन जब नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते फतवे रखते हराम है, सही है, नहीं है, गलत है। अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को, जो 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी 8वीं सदी 9वीं सदी वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, मतलब अंधेरा का दौर। 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी
हिस्ट्री कौन कहते हैं? यूरोपियन कहते हैं कि डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे, और इस पर तकरीर दिया मैंने। 8वीं सदी 9वीं सदी में जब वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, हम दुनिया में तरक्की नहीं किए, उस टाइम अगर आपको साइंस के बारे में साइंटिस्ट बनना है तो आपको अरबी जानना फर्ज होता था। तो कई गैर मुस्लिम साइंस की तहकीक करने के लिए अरबी सीखते थे। और आप अगर जाएंगे और मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? कौन है? गेबर, वेस्टर्न नाम जाबिर है, जाबिर इब्न हय्यान। उसने ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल लफ्ज किधर से है? अल्कोहल जो शराब, अल्कोहल OH किधर से है? अरबी लफ्ज है अलगुल। ट्रिग्नोमेट्री को इसने इजाद किया, मुसलमान। आप देखेंगे इब्न सीना, एविसीना, इब्न सीना, मेडिकल बुक, राजी, लिस्ट आपको मिलेंगे 8वीं 9वीं 10वीं सदी में। जो हमारे साइंटिस्ट थे, मेडिकल स्मॉल पॉक्स का इजाद किसने किया? ट्रीटमेंट किसने किया? बुक्स, कानून, डॉक्टर के लिए कानून की 2 वॉल्यूम जो थे वो आपको पढ़ना ही चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया? हम तरक्की नहीं करें। क्यों? पहले हम कुरान और हदीस के करीब थे। जब कुरान और हदीस के करीब थे हम दुनिया के चोटी पे थे। तादाद में कम थे हम, अभी तादाद में तो ज्यादा है हम, 25%, 2 बिलियन। झाग की तरह, अल्लाह के रसूल चले झाग की तरह, क्या फायदा? लोग झपटने के लिए ठहरे, क्योंकि हम कुरान और हदीस को दूर जाए। जितना दूर जाएंगे उतना हम दुनिया में भी नीचे जाएंगे। तो अगर हम कुरान पे और रिसर्च करें और वो उल्मा की बात माने जो सही है बनिस्बत हराम हराम सबूत होना चाहिए, हम शरिया को फॉलो करना चाहिए, जो उल्मा फतवा देते उसे मानना चाहिए। लेकिन कोई भी सही उल्मा कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको रोकेगा नहीं। सही उल्मा कभी नहीं रोकेगा। अगर कुछ गलत है रोकेगा, रिबा गलत है, रिबा के बिना धंधा नहीं करते तो बेवकूफ लोग जो बोलते हैं। जितने टॉप 500 वर्ल्ड की कंपनी ऑल आर डेट फ्री है, टॉप कंपनी। तो जो हर एक फन में अलग आलम है। आज की तारीख में इस्लामिक इकोनॉमिक में नंबर 1 है मुफ्ती तकी उस्मानी, नंबर 1 दुनिया में। आपके वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के माहिर है। और हामिद हसन जिसने मैंने कहा था उनका इंतकाल हो गया, उनने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मैं माशाल्लाह उनके बहुत करीब तक काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक इकोनॉमी में बात करने। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारे। ये लोग इस्लामिक इकोनॉमी माहिर है। अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हराम, अरे भाई आपके पास है कोई दलील? और हनफी फिक्र जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक्र है। जो हनफी उलमा ने जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी की इज्जत सब जगह है दुनिया में। इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है, क्योंकि हनफी फिक्र ये सच है भाई। मैं कभी डरता नहीं सच बात कर, क्यों मैं इनको प्रेस क्या, चारों अम्मा की इज्जत करता हूं मैं। तो हमें ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूँ क्या नहीं हूँ कि पाकिस्तान में और इस्लामिक केवल होना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है इधर, लेकिन मलेशिया में अभी मलेशिया कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, तो आप बोले वापिस से वीडियो वायरल होगा नहीं। लेकिन मलेशिया पाकिस्तान का कोई इतराज नहीं लेगा, इंडिया पाकिस्तान में इतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकता हूँ मुफ्ती साहब। मलेशिया में जो प्रैक्टिकल इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है। वहां नंबर 2 शेख दाऊद बकर, वो नंबर